اب اللہ کی نماز ہے جی، منہ طرف قبلہ شریف کے، ماں پیچھے بیٹھی ہے، باپ ادھر بیٹھا، نماز اللہ کی پڑھنی ہے، قبلے سے سینہ پھر گیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز کی شرط ختم ہو گئی۔ نماز وہ تب ہوگی جب قبلے کی طرف سینہ منہ ہوگا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی سینہ پھر گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے میں جمعہ ادا کرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے دائیں کون تھا میرے بائیں کون تھا، توجہ نہیں رہتی۔ نماز میں توجہ قبلے کی طرف، اللہ کی طرف، بندگی کا وقت آ گیا، آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا دائیں بائیں پچھلے جمعے کون کس کے کھڑا تھا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، محبوب کے صحابہ اللہ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نماز میں کیا، کسی دن ابھی حکم نہیں آیا، ابتدا ہے، صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کرنے لگے، بھائی مغرب کی نماز میں آقا قرات کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں آقا قرات کرتے ہیں، فجر میں آقا قرآن اونچی پڑھتے، پتہ نہیں ظہر میں آقا قرات کرتے ہیں یا خاموش رہتے، ہمیں پوچھنا یاد نہیں، ہمیں نہیں پتا، آقا کا چہرہ ادھر ہوتا، ہم پیچھے ہوتے، پتہ نہیں آقا پڑھتے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کہ نہیں۔ اب آپس میں یہ باتیں ہو رہی، کسی نے کہا پڑھتے ہوں گے، کسی نے کہا نہیں پڑھتے ہوں گے، باتیں چل رہی تھی۔ ایک صحابی کہنے لگے میں بتاتا ہوں اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی قرآن پڑھتے، لیکن خاموشی آہستہ آواز میں پڑھتے، بلند آواز میں نہیں۔ باقی صحابہ نے کہا کیا آپ نے پوچھا تھا؟ نہیں میں نے پوچھا نہیں۔ آقا نے تمہیں بتایا تھا؟ نہیں آقا نے بتایا نہیں، پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، میں جان بوجھ کے امام کے ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہوں اور آنکھوں ہی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، نماز اللہ کی پڑھتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کا کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں بھی آقا کریم کی داڑھی مبارک ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے، اس سے میں نے پتہ چلایا آقا ظہر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، آقا عصر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا محبت عشق کا انداز تھا، یہ چہرہ انور نور خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ذات پہ عالم سارا فدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر دے تیری گواہی شام و سحر، یا رسول اللہ یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر دے تیری گواہی شام و سحر، پر کنکر نے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اللہ نے انہیں والضحیٰ والا چہرہ عطا فرمایا۔ بصرہ کا علاقہ ہے اور آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد امام ابو یوسف ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شاگرد ہیں مشہور، باقی اور بھی شاگرد لیکن یہ مشہور۔ امام محمد
छोटे से थे आपके पास पढ़ने के लिए आए, अभी बिल्कुल दाढ़ी के बाल भी नहीं आए, आपके पास पढ़ने आ गए, पढ़ते रहे। अल्लाह ने खूबसूरत बड़ा बनाया, उन्हें हुस्न बड़ा अता फरमाया, जो भी देखता इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। चुनांचे आप बसरा की गलियों में घूमते तो औरतें रुक के देखती, इतना अल्लाह जिसे चाहे हुस्न अता फरमाए। अब बसरा के इलाके की एक बूढ़ी माँ, लोग उसे कहते अम्मा कलमा पढ़ ले, नहीं पढ़ती, बूढ़ी थी जिद में आ जाती, मैं नहीं पढ़ती, जो मर्जी कर लो, अम्मा कलमा पढ़ ले, नहीं पढ़ती, मैं सारी उम्र गुजर दी, कलमा पढ़ ले, नहीं पढ़ ली। एक मर्तबा आई उस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आई और आके उन्हें देखा, कहा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आपने कहा माशाल्लाह माई तू आ गई, कलमा पढ़ाया, बातें की, बड़ी खुशी बात है। लोगों ने, सहेलियों ने, औरतों ने कहा माँ तुझे हम इतना कहते रहे कलमा पढ़ ले, तूने नहीं पढ़ा, आज अचानक क्या हो गया कि तूने खुद जाके इमाम मोहम्मद के पास कलमा पढ़ लिया। कहने लगी तुम कहते थे ना मोहम्मद का कलमा पढ़ो, मोहम्मद का कलमा पढ़ो, मुझे पता ही नहीं था मोहम्मद कौन है। जब मैंने इस छोटे मोहम्मद को देखा तो मैं देखती रह गई कि अल्लाह जिसका छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, इनका बड़ा मोहम्मद कितना प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं है। वो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, वो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम। अज़ाने देते मुझे बताइए, हाजी साहब अज़ान देते, शाह साहब, हाजी रफीक साहब, कभी उधर अज़ान दे दी, कभी इधर दे दी। मेरी भी कोशिश होती है अगर मुझे मौका मिले, क्योंकि अज़ान की बरकत बड़ी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान देने से गुनाह माफ हो जाता है। जहाँ तक अज़ान की आवाज जाती है, कयामत को वो सारी चीजें गवाही देगी, मौला तेरा ये नाम बुलंद करता। अज़ान बड़ी मुबारक, वो अलग से मौजू में पहले बयान भी कर चुका। हजरत बिलाल खाना काबा की छत पे आका के हुक्म से अज़ान तो बिलाल, आवाज भी ऊंची है, हजरत बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़ गया। इधर वो अंदर अज़ान देते, हाजी साहब को नहीं पता बाहर कौन है, मेरे दाएं कौन है, बाएं कौन है, पीछे कौन, आगे कौन। अज़ान दी, मुंह तरफ वो किबला शरीफ के माइक सामने अज़ान दे दी, कभी आंखें खुली कभी आंखें बंद, हर कोई अपने तरीके से अज़ान दे के आ गया। किसी ने 1 मिनट की, किसी की 2 मिनट की, लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को ऐसे नहीं। आका ने फरमाया बिलाल क्या करते हो, मैंने रात तुम्हारे चलने की जन्नत में आवाज। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला खाना काबा है जिसकी तरफ देखने के लिए दुनिया मरती है। मौला एक मर्तबा काबे की
की ज़ियारत करा दे, काबे का दीदार करा दे। दीवाना वार लोग तवाफ करते हैं, बिलाल काबे की छत में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल का मुंह सामने ताकि आवाज दूर जाए। अचानक ये लफ्ज आ गए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बिलाल का चेहरा सामने से हट गया, नीचे देखने लगा। बिलाल क्या देख रहे हो? मैं अपने महबूब का चेहरा देख रहा हूं। आका जिस तरफ होते बिलाल उन्हें देख के कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये मुबारक चेहरा है। सहाबा नमाज में भी ज़ियारत करते, अजान देने वाला अजान में भी ज़ियारत करता। तो ये वो चेहरा है, मुबारक चेहरा। अल्लाह करीम ने मुझे सादत अता फरमाई उमरा शरीफ की। अल्लाह करीम तमाम को बार बार मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब करे। वापस आया या जाने लगा, उधर फोन आया कि हाँ जी दुआ कर दे, हमने भी मदीने जाना, हमने भी सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत करनी, सुनहरी जालियों को देखना, हमने भी जाना। दिल करता सब्ज़ गुंबद को। भाई आपने आगे भी तो सब्ज़ गुंबद को देखा है, अब दोबारा क्यों? कोई मुफ्त में जाते हो? लाखों रुपया लगता है। जवाब देते हैं देखने को जी चाहता है, आंखें नहीं भरी, अभी दिल को ठंडक नहीं पहुंची और जी चाहता है। बल्कि आने वाले कहते जब तक देखा न था मोहब्बत थी, देख लिया है तो मोहब्बत ज्यादा होगी। अब जी चाहता है दोबारा जाए, दोबारा देखे। भाई देख लिया बस, नहीं और देखना है। मुझे बताइए सब्ज़ गुंबद को देख के आंखें नहीं भरती? सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत करके इंसान की तमन्ना फिर देखूं। कई सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत करते, वहाँ दुरूद पाक पढ़ते, आंखों से जारी हो जाते, आंसू निकल जाते। लोग सब्ज़ गुंबद की सुनहरी जालियों के लिए तड़पते हैं। अंदाजा लगाइए जिस आका के मज़ार का गुंबद इतना प्यारा है कि सारी दुनिया सब्ज़ गुंबद करती है। अंदाजा लगाइए सब्ज़ गुंबद वाले के चेहरे की ज़ियारत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जिन सहाबा ने देखा होगा वो बार बार कहते थे मौला एक मर्तबा और हमें अपने महबूब का जलवा दिखा दे। तो ये चेहरा मुस्तफ़ा आका करीम का वो मुबारक चेहरा जिसे नसीब हो गया, अल्लाह ने दोनों जहानों में सरफराजी अता फरमाई। दुआ करते रहा करे, ख्वाब में सही जैसे भी सही, अल्लाह करीम चाहे आज भी इस दौर में भी कई लोग हैं दरूद पाक पढ़ते रहते हैं, गुनाहों से बचते रहते हैं, दुआ करते हैं मौला हमने दरूद पढ़ा, गुनाहों से अपने आप को बचाया, अपनी आंखों से गुनाह नहीं किया, हमारी पाक आंखें हैं मौला, दरूद पाक का वास्ता देते हैं, अपने महबूब का जलवा अता फरमा। किताबों में लिखा है लोग सीना बसीना बयान करते, इस दौर में भी कई लोग हैं रात दरूद पढ़ के सोते हैं, अल्लाह अपने महबूब का जलवा अता फरमाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु
वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين